हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आइए हम इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें चीज़ जाननी है वो है कि व्हाट आर यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स किसी भी चीज़ को नापने की एक ऐसी इकाई हम कह सकते हैं यूनिट है जिससे कि हमें पता चलता है that it is something what we want to know. For example, हमें एप्पल तो चाहिए बट हमें ये नहीं पता कि एप्पल किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में चाहिए या फिर कैसे चाहिए। तो वो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कि हमें एप्पल तो चाहिए पर कैसे चाहिए ये नहीं पता। तो इसी को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को बने हैं यूनिट्स। यूनिट्स होते हैं फॉर एग्जांपल किलोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, मीटर देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं और किलोग्राम, मोल, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर, meter, second, and so many. Likewise, there are more examples of this, but we have to study about some means that are useful for us. So next one is what are measurements. तो measurement क्या होती है? Measurement is something that we can know about something, that what is it. For example, measurement we do sometimes by scale like this. There is a scale like this and we want to measure in inches. So we say that we have 1 inch, 2 inch, 3 inch, or for example measurement of current, we will say that we have current of 3 kilowatt per hour in our house, and that is measured by ampere. And other one is kilogram. Kilogram is used for measuring some mass, यानी कि जो मास होता है उसका वजन होता है, उसको नापने के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, बट अभी हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इन आर SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट्स, how many base units are there? So basically there are 7 base units. What are that? First one is time. For time we use S or second. For length we use meter or m. For mass we use kg or kilogram. For electric current, A or ampere. For temperature, K or Kelvin. For amount, mole or mole. For luminous intensity, candela or spelling candela. So these are our base units, and as we all know that time is measured in seconds. So what is a second? Second is a unit to measure time. And likewise, what is meter? Meter is a unit to measure length. What is kilogram? So kilogram is the measurement or unit of measuring mass. What is ampere? Ampere is measurement or unit to measure our electric current flowing in our houses or anywhere. So likewise there are 7. Kelvin for our temperature, and for amount we use mole, and for luminous intensity means जो धूप आती है हमारे पास उसको नापने के लिए luminous intensity के लिए हम कैंडेला यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है जो भी फिगर्स होती है हमारी जीरो को छोड़ के, वो रूल्स हम आगे पढ़ रहे होंगे, बट जीरो को छोड़ के जो भी फिगर हमारी इक्वेशन में या फिर आंसर में प्रेजेंट होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 682 है, तो 682 में पहला सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 6 आ गया, सेकेंड सिग्निफिकेंट हमारा फिगर 8 आ गया, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 आ गया। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, हमने देख लिया ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। What does it mean? So it basically means that anything which is not zero in our given answer or given example, so that is known as our significant figure. For example, here we have 0.0, 3, 4 and 5. Here how many significant figures are present? Some would say that 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 significant figures, but no, actually there are only 3 significant figures here. Why?
because all the non-zero digits are only significant digits. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो खाली वो डिजिट होते हैं जो जीरो नहीं होते हैं. जीरो खुद भी होते हैं बट किसी किसी केस में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं केसेस में खाली जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अदरवाइज जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर. So next one is all the zeros between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is, if at all. What does it mean? It only means that all the non-zero digits which are present, and if there is a zero after that or in between of that. For example, जो हमारे जीरो हैं पहले है, इसका कोई भी काम नहीं है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. अगर बाद में है जैसा कि यहाँ पे, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है. कैसे? अगर आप कहते हो कि हमें 07 रुपीज की कैंडी टॉफी चाहिए, तो 07 रुपीज को 7 रुपीज ही मान लेते हैं, जीरो का यहाँ कोई वैल्यू नहीं होता स्टार्टिंग में. बट वहीं अगर आप 70 कर दोगे तो ये 70 बन जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर जीरो पहले लग रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट टू लुक गुड, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं, और अगर बाद में लग रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज इफ द नंबर इज लेस देन 1, द zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant. लेफ्ट में अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में अगर कोई भी जीरो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये here we have 3 significant figures and there is 1 zero, so 0 is not significant here. According to our previous one also that कोई नंबर होते हैं उसके पहले जीरो अगर लगाए तो वो कोई भी काम का नहीं होता, वहीं अगर बाद में लगा दे तो वो बहुत ज्यादा काम का होने लगता है. इसकी ये डेफिनेशन हमको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर कोई 1 से कम है, द zeros ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट में कोई जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा. ये था हमारा सिंपल सा फंडा यहाँ पे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज दैट द ट्रेलिंग जीरोस in a number with decimal point are significant. That means that if there are certain number of times zero coming together all together, one by one, one by one, one by one, it is not stopping. It is coming regularly. For example, here, if it would be only 1, then it would not be significant. But they are 1, 2, 3, 4, 4. So they are significant. Why? Because they are coming repeatedly. They are coming repeatedly. That's why they are significant digits here. And also these would be said. So moving on to next. Next one is the trailing zeros in a number with a decimal point are significant. What does it mean? It only means that if there are zeros a number of time coming repeatedly. For example, if it would be only one time zero here, it would not be a significant digit. But there are 4, 1, 2, 3, 4 times zeros. Then it would be called what? It would be called a significant figure. Why? Because they are coming repeatedly and in a number of time they are present here. So that would be called a significant figure. And they both are also significant figures. Why? As we know that the significant figures are non-zero figures, and also if there is a non-zero figure and after that there would be any zero, then it would also be called a significant figure. So this was the simple definition for our this topic. And moving on to next. Next is rounding of the uncertain digits, यानी कि जो uncertain digits present है हमारे आसपास में उनको round off करना. What does it mean? So let's see. Determine the rounding digit. Look at right hand side. For example, first look at the right hand side of these digits. For example, here is 2 and in right hand side of this there is 1.
so it would become 10 because it is less than 5, and here also it is 1, it would become 110 because it is less than 5, and here is 5, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, हमारा 5 आ गया। अगर 5 आ गया या 5 से ज्यादा आ गया तो 1 प्लस हो जाएगा उस डिजिट के आगे वाले डिजिट में और उसके साथ एक 0 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 58 है, 58 में 5 आ गया तो 5 में 1 प्लस कर देंगे हम, व्हाट वुड इट बिकम, it would become 6, so 6 and next digit would become 0, here it became 0 and it is 60. This was the concept of rounding of figures. Let's see some more examples. For example, there are number of times 1344 means 1344, and if we say to round off these figures, it would be, here it is 4, okay, then there would be this digit only and another digit would become 0, यानी कि अगर यहाँ 5 से कम है यानी 5 से कम है तो ये वही डिजिट रहेगा और उसके अगले वाला डिजिट खाली 0 बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इसी वाले में 1 प्लस हो जाता और नेक्स्ट वाला 0 बन जाता। सेम कॉन्सेप्ट वी वुड अप्लाई हियर ऑल्सो। व्हाट इज इट सेइंग? सो हियर इट इज दैट it is 8. 8 is obviously greater than 5, so it would become 9, and this digit it would become 0. What would it become after calculating? It would become 1490. So this was the concept, and by this concept moving on to next is dimensions of physical quantities. तो dimensions क्या होती है? हम सब ने पढ़ा होगा हमारे मैथ्स में that if something is like this, it is 2D shape. 2D, what means of 2D? 2D means two dimensional, only it have two dimension, a front side and back side, and there are 3D also. Let me make a cube. So it is a 3D, it have 3 dimension. 1 it would cover here, 2 and 3, it have 3 dimensions. And likewise there are 4 dimensional, 5 dimensional, 6 dimensional also. But here in physics, what we say to dimension? We say that dimensions are LMT or MLT. M means mass, L means length, T means time. That are dimension of any formula. किसी भी फॉर्मूला में फिजिक्स के आपको MLT देखने को मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड को ही देखते हैं, स्पीड ही देखेंगे तो इसको एमएलटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, खाली ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हम नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट डी अपॉन टी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी वुड हैव टू मेक इट इन एमएलटी फॉर्म। एमएलटी मीन्स इफ देर इज मास इधर है ही नहीं कोई मास, देन वी वुड से 0, एंड डिस्टेंस यानी लेंथ मीन्स 1, time 1. This became the formula of speed for MLT formula. ऐसे ही हम आगे कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ आ गए हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला है। फर्स्ट वन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। पहले ऊपर आ जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। दैट मीन्स लेंथ एंड t माइनस 2, t के पावर माइनस 2 अपॉन t, ये हमारी बन गई थी वेलोसिटी टाइम की। अब इसको MLT में कन्वर्ट कैसे करें? तो MLT में कन्वर्ट करने के लिए t हमारा 1 यहाँ था और t माइनस 1 यहाँ था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस 2 बन गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया फॉर्मूला? m तो है नहीं 0, l एंड t टू द पावर माइनस 2, ये बन गया हमारा MLT फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। सेम मोमेंटम का हमारा MLT फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी हमने क्या निकाला? m पावर 0 l t माइनस 2, ये हमारा निकल गया था वेलोसिटी। तो ये हमने m और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमारा निकल गया m l t टू द पावर माइनस 1। ये हो गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाला था, एक्सेलरेशन ये वाला था हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मास में से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लिकेट कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया, दैट इज MLT t टू द पावर माइनस 2। ऐसे प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हम
निकाल लेते हैं एरिया MLT, T⁻⁻², ये हो गया हमारा फोर्स, अपॉन में एरिया क्या होता है हमारा लेंथ का स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंथ स्क्वायर लिख दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव टू मेक इट इन MLT फॉर्मूला। देन इफ M is 1 present here, L is 2, 2 into 2 minus 2 came here and there is L⁻⁻1, then it is our MLT formula for these all the concepts. You can read it and इसको याद करने का एक अच्छा फॉर्मूला है कि खाली जिसकी पावर्स हैं उन्हीं को याद कर लो, बाकी जिसकी पावर 0 हो उसको 0 लिख दो, और अगर जिसकी पावर नहीं है तो उसको -1 कर दो। That was our dimensional formulas. Moving on to checking the dimensional consistency of equation. मतलब कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं इक्वेशन की। जैसे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो उसको हमें चेक भी तो करना होगा दैट इट इज राइट और रॉन्ग। तो हाउ कुड वी? सो फर्स्ट पॉइंट, द रूल्स टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आर एज फॉलोज। तो पहला आता है एवरी टर्म इन इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। एवरी टर्म, हर टर्म होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कर सकते कि हम खाली L और T लिख दे क्योंकि L की पावर 1 थी, T की पावर -2 थी, तो हमने LT पावर -2 कर दिया। ऐसा गलत है, ये MLT फॉर्मूला से हमारा गलत हो जाता है। हमको इसे लिखना पड़ेगा दैट M⁻0, M की कुछ नहीं है तो 0 तो है, जिसका कुछ नहीं है उसका 0 है, और L की 1 थी, T की -2 थी। अब ये बना है हमारा फुल अच्छे से फॉर्म में। सो पहला रूल हमारा यही कह रहा था कि MLT तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड थर्ड वन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस मेक्स नो सेंस। यानी कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये कोई सेंस नहीं बनाता इस MLT फॉर्मूला में। अगर एक दूसरे से एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे फॉर्मूला से, और कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि आगे चल के इससे फॉर्मूलेस भी नहीं बनते। ये था हमारा चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमको जो रिलेशन है उनको डिड्यूस करना आना चाहिए, यानी कि कंपेयर करना आना चाहिए। हाउ टू कंपेयर इट, लेट्स चेक। सो फर्स्ट, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, एग्जांपल्स। एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, तब तक हम पॉइंट पढ़ते हैं पहले। दैट टाइम t is the function of mass of the bob m, its length L and gravity G, which can be numerically expressed as, this is the numerically expressed relationship among the period of time, mass, length and gravity। यानी कि अगर हम इधर देखें तो इधर बेसिकली किया क्या है, खाली इन्होंने एक कंपैरिजन किया है दैट हमारे दो फॉर्मूला हैं, लेट्स टेक 2 फॉर्मूलाज ऑफ MLT। तो इनको कंपेयर करने के लिए या फिर इनको डिड्यूस करने के लिए दोनों फॉर्मूला को LHS और RHS की साइड में रख के इनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, जैसे यहाँ पे इफ M⁻1, L⁻⁻1, T⁻3 और इक्वल में आ गया नेक्स्ट वाला हमारा M की पावर 2, इसकी L की पावर 0 है, यहाँ पे T की पावर है हमारी -2। इनको अब इक्वेट करा देते हैं। इक्वेट करा के T की पावर हमारा 1 निकल के आता है कॉमन में, T का 1 कॉमन आ गया यहाँ पे। L 0 था, L -1 था, 0 को तो कुछ मानेंगे नहीं तो L -1 ही आ जाएगा। M का यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, M1 M2 M3 बन गया। ये हमारा निकल के आ गया रिलेशन इसके बीच में। और इसको अगर हमें ग्रेविटी के रिलेशन से निकालना था तो इसके साथ हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G लिख देंगे। अगर इसे हमें फोर्स के उससे लिखना था तो फोर्स के लिए हम फोर्स का कांस्टेंट जो रहता है, फोर्स का कांस्टेंट, उसको F को लिख देंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा सिंपल सा डिड्यूसिंग करने का कॉन्सेप्ट। तो बाय दिस कॉन्सेप्ट द चैप्टर एंड्स हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।